السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالارجنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ دبئی صحرا سے گلستان بن گیا، وسائل سے بھرپور حیدرآباد کو عالمی شہر بنانے کی مساعی، ریونت ریڈی کا دورہ دبئی۔ سابق وزیر محمد علی شبیر حکومت کے مشیر مقرر، مزید 3 مشیران کا تقرر، حکم نامہ جاری۔ چھ گارنٹیوں پر عمل آوری کے لیے حکومت کے پاس 57 دن باقی، 30 جنوری تک ڈاٹا انٹری کا عمل مکمل ہوگا۔ 48 گھنٹوں میں 2 گارنٹیوں پر عمل کے بعد پیش رفت سست۔ برقی بل سونیا گاندھی کو روانہ کرنے KTR کی ہدایت، 17 مارچ سے پہلے 6 گارنٹیوں پر عمل کریں۔ جھوٹ بول کر کانگریس اقتدار میں آئی ہے، BRS قائدین کا رد عمل۔ اور جنوبی افریقہ سے آنے والی خاتون مسافر کے پاس سے بھاری مقدار میں ہیروئن ضبط، شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتھارٹی کی کارروائی۔ اور ناظرین، پیش خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد کو عالمی افق پر پہنچانے اور دنیا کے منفرد شہروں میں ایک بنانے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دبئی میں ان اداروں، فرمز و اہم شخصیات سے ملاقات کی جنہوں نے دبئی صحرا کو آج دنیا کا گلستان بنا دیا۔ ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے اور لندن میں اپنی مصروفیات کے بعد وزیر اعلیٰ اپنے وفد کے ہمراہ دبئی پہنچے، جہاں انہوں نے اتوار کو مصروف ترین دن گزارا۔ عالمی شہروں کی منصوبہ بندی کرنے والے، ڈیزائن کرنے والے، میگا ماسٹر پلان ڈیولپرز اور آرکیٹیکٹ کی فرمز اور ان کے ذمہ داروں سے مذاکرات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حیدرآباد شہر کے بیچوں بیچ 56 کلومیٹر طویل موسیٰ ندی ہے۔ اس ندی کی نئی صورت گری، گرین اربن اسپیسز، تجارتی نقطہ نظر سے فائدہ مند بنانے کے موضوع کے ساتھ سرمایہ کاری پر بات کی گئی۔ دبئی جو کبھی صحرا ہوا کرتا تھا کی نئی صورت گری کے لیے 70 سے زائد عالمی پلانرز، ڈیزائنرز، ماہرین اور کنسلٹنٹس کی خدمات لی گئی تھیں۔ ان کمپنیز و فرمز
इस वक्त यूरोप, मशरिक़ वस्ता और दीगर आलमी शहरों की तज़ीनुनों में लगे हुए हैं। हैदराबाद को सबसे बेहतरीन शहर बनाने दुबई के इन फर्म्स और इनके नुमाइंदों के साथ बातचीत जारी रहेगी और उनके वफूद बहुत जल्द रियासत का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक तारीखी शहर है। तारीखी शहर के साथ साथ ये झीलों और बागात का शहर हुआ करता था। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद का मुल्क के किसी शहरों से मुकाबला करना नहीं चाहते, बल्कि वो इसे आलमी सतह की एक मंजिल बनाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आला के साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी शीशादरी, बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर और दीगर रियासती ओहदेदार मौजूद थे। हुकूमत ने कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक हुक्मनामा जारी किया है। उन्हें दर्ज फहरिस्त अक़वाम, क़बाइल, पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के उमूर की जिम्मेदारी दी गई है। इनको ममलकती वजीर का दर्जा दिया गया। हुकूमत ने उनके अलावा अलहदा हुक्मनामे जारी करते हुए मजीद 3 कायदीन को मुशीर का दर्जा दिया है। प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि को नई दिल्ली में हुकूमत तेलंगाना का खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। उनका भी दर्जा ममलकती वजीर का होगा। हरका वेणुगोपाल राव को और हुकूमत का मुशीर बराए प्रोटोकॉल व पब्लिक रिलेशन मुकर्रर किया गया। साबिक रुकन असम्बली वी नरेंद्र रेड्डी को मुशीर हुकूमत बराए पब्लिक ऑफिसर्स मुकर्रर किया गया। उन्हें भी ममलकती वजीर का दर्जा दिया गया है। प्रजा पालना प्रोग्राम के इख्तिताम हुए 15 दिन गुजर चुके हैं। 48 घंटों में सिर्फ 2 गारंटियों पर अमलावरी करने वाली कांग्रेस पार्टी दीगर गारंटियों पर अमलावरी में क्यों ताख़ीर कर रही है। जुमला 1 करोड़ 25 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही का पैमाना क्या होगा। सफ़ेद राशन कार्ड के लिए 12 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। हुकूमत के पास सिर्फ 57 दिन हैं। दरख्वास्तों के डाटा एंट्री का अमल 30 जनवरी को मुकम्मल होगा। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत ने प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अभय हस्तम की दरख्वास्त वसूल किए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही 48 घंटे में 2 स्कीमों पर अमल करना शुरू करते हुए आवाम के उम्मीदों को मजीद बढ़ाया। 47 दिन हो चुके हैं। दूसरी गारंटियों पर कब अमलावरी होगी, आवाम इंतज़ार कर रही है। प्रजा पालना फॉर्म्स को ऑनलाइन करने का अमल भी जारी है। 30 जनवरी तक ये अमल मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन रखी गई है। इसके बाद मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही के लिए कवायद व शराइत तैयार किए जाएंगे। इसके बाद ही वाज़ेह तौर पर पता लगेगा कि कितने मुस्तहिक़ अफराद को फ़ायदा पहुँचने वाला है। कहने को 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा दरख्वास्त वसूल हुई हैं। ये दरख्वास्त 5 गारंटी के लिए ली गई है। अगर हम अलग अलग स्कीम की दरख्वास्त का जायज़ा लें तो हर स्कीम के लिए 1 करोड़ दरख्वास्त हो सकती है। इन स्कीम से इस्तिफादे के लिए सफ़ेद राशन कार्ड लाजमी है। रियासत में 90 लाख सफ़ेद राशन कार्ड मौजूद हैं। 12 लाख नए राशन कार्ड की दरख्वास्त दाखिल की गई है। अगर इनको मंजूरी दी गई तो ये तादाद 1 करोड़ की हो जाएगी। बस नए स्कीम हैं, जैसे गैस सिलेंडर्स 500 रुपये में दिया जाएगा। इसके लिए 92 लाख दरख्वास्त वसूल हुई हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में आसरा वज़ाइफ स्कीम का नाम तब्दील करके जीवता रखा गया है। 44 लाख अफराद इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। इसके लिए मज़ीद 22 लाख दरख्वास्त मौसूल हुई हैं। गृह ज्योति मुफ्त बरक़ी स्कीम के लिए 82 लाख दरख्वास्त दाखिल की गई हैं। इंदिरम्मा मकान के लिए 83 लाख अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की है। रियासत में ऋतु बंधु स्कीम के तहत पहले ही 66 लाख किसानों को रकम दी जा रही है। कांग्रेस ने इसका नाम बदलकर ऋतु भरोसा कर दिया है। इस स्कीम के लिए 44 लाख किसानों ने दरख्वास्त दाखिल की है। इन एदाद शुमार को देखते हुए हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होगा, मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही का पैमाना क्या होगा। 100 दिन में गारंटी को मुकम्मल करने हुकूमत के पास सिर्फ 53 दिन का वक्त बाकी है। इस दौरान लोकसभा इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी होने का भी इम्कान है। इससे पहले ही हुकूमत आवाम का भरोसा जीतना होगा, वरना लोकसभा इंतख़ाबात में आवाम की बरहमी का हुकूमत को सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 500 रुपये में गैस सरबराही और 200 यूनिट बरक़ी मुफ्त देने के वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। इम्कान है कि 30 जनवरी के बाद हुकूमत इस मामले में तेज़ी से पेशरफ्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट 4TV न्यूज़।
बीआरएस पार्टी के लीडर आर श्रीधर ने कहा कि हुकूमत को मुशीरों की क्या जरूरत है। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया था। अब रेवंत रेड्डी वजीर आला बनते ही 4 मुशीरों को मुकर्रर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि कांग्रेस हुकूमत में मुशीर नहीं होंगे। रियासत की जरूरियात को पूरा करने और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए रिटायर्ड ओहदेदारों को मुशीर के तौर पर केसीआर ने मुकर्रर किया था, लेकिन रेवंत रेड्डी ने सियासी कायदीन को मुशीर बनाया है। रेवंत रेड्डी कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। वोट बराए नोट में ताउन करने वालों को रेवंत रेड्डी ओहदे दे रहे हैं। वेम नरेंद्र वजीर आला के मुशीर नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी के शख्सी मुशीर हैं। एसटी, एसटी और बीसी अक़लियतों के मुशीर के तौर पर मोहम्मद अली शब्बीर को मुकर्रर किया गया है। इन महकमे जात के वजीर कौन होंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के गलत फैसले लेगी तो अवाम उसे 1000 मीटर जमीन में दफन कर देंगे। बीआरएस पार्टी की रुकन काउंसिल के कविता ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में बीआरएस पार्टी को दावत नहीं दी गई है। कविता ने मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकारी तौर पर कोई दावत नहीं दी गई है। राम सबके हैं, किसी एक दिन अयोध्या का दौरा करने का मौका मिलेगा तब वहां पर जाएंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस झूठ बोलकर इख्तिदार में आई है। मलकाजगिरी पार्लियामेंट हल्के के कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरकी बिल्स को सोनिया गांधी को रवाना करें। इस काम में बीआरएस पार्टी के अरकान मुकर्रना और कायदीन अवाम के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बात से मुकर रही है, इसके लिए अभी से दबाव डालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने दीगर वादों से भी मुकर रही है। अवाम के कोर्ट में कांग्रेस को ठहराने की जरूरत है। कांग्रेस हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए हक़ मालूमात एक्ट का कारकुन पूरी तरह इस्तेमाल करें। केटीआर ने कहा कि कार रिपेयरिंग हो गई है, दोबारा मजीद तेजी के साथ दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उनके लिए पार्टी का लीगल सेल काम कर रहा है। बीआरएस पार्टी मोदी और रेवंत रेड्डी से खौफजदा होने वाली पार्टी नहीं है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात एक इम्तिहान हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 5 गारंटियों का वादा करके कांग्रेस पार्टी मजाक बन चुकी है। तेलंगाना में भी वही सूरत हाल होने वाली है। सर्वे बता रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की बुरी हालत है। हरीश राव ने कहा कि 17 मार्च के अंदर कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन पूरे होंगे, तब तक लोकसभा इंतखाबात का ज़ाब्ते अखलाक आ जाएगा। अगर ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया तो कांग्रेस को अपने वादों को मुलतवी करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए हुकूमत रियासत में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने से पहले गारंटियों पर अमल करे। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इत्तेहाद हो चुका है। दोनों पार्टियों के ड्रामों का पार्लियामेंट इंतखाबात में मुंह तोड़ जवाब देते हुए बीआरएस को कामयाब बनाने के लिए अभी से मेहनत शुरू कर दें। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली के श्रीहरि ने कहा कि बीआरएस को जमीन दोस्त करने वाला इस जमीन पर पैदा नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने दाउस में जिस अंदाज से बयानबाजी की है वो एक वजीर आला की तरह नहीं बल्कि एक मिस्त्री की तरह था। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की इज्जत निकाल दी है। केटीआर ने जब दाउस का दौरा किया था उनका अंदाज कैसा था और रेवंत रेड्डी के दौरे के दौरान उनका अंदाज कैसा था, अवाम गौर कर रहे हैं। केटीआर ने तेलंगाना को आलमी सतह पर इज्जत दिलाई तो रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की इज्जत निकाल दी है। कांग्रेस कायदीन बंदरों की तरह उछल कूद करके पिछली हुकूमत पर सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात जब होंगे बीआरएस कामयाब होगी। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर सी माला रेड्डी ने कहा कि मलकाजगिरी बीआरएस पार्टी का गढ़ है। मलकाजगिरी हल्के के कायदीन के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम के लिए काम नहीं करती। असेंबली इंतखाबात में कामयाब होने के बाद उछल कूद कर रहे हैं। अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। 5 साल तक सिर्फ जबानी खर्च करते हुए वक्त गुजारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी का दिवालिया निकल चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी कई हुकूमतें गिरा चुके हैं। पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद मालूम होगा कि तेलंगाना में क्या होगा। मलकाजगिरी में बीआरएस ही कामयाब होगी। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सालारजंग म्यूजियम में 5 नई गैलरीज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सालारजंग म्यूजियम दुनिया के म्यूजियम्स में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत नई गैलरीज के जरिए अवाम को माजी के औराक दिखाना चाहती है। म्यूजियम्स व तहजीबी उमूर के वजीर की हैसियत से उन्होंने मुल्क में कायम किए जाने वाले नए म्यूजियम्स और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे कामों से वाकिफ करवाया।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने लंदन में जो कहा है इसमें गलत कुछ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने 10 साल में कमीशन के लिए रियासत को मखरूस बना दिया है, जिसकी जिंदा मिसाल कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। नई हुकूमत बन के 40 दिन भी नहीं हुए, बीआरएस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बरकी बिल्स अदा न करें, ये बात कहने का केटीआर को क्या हक है। कांग्रेस ने वादा किया है उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि डाउस में रेवंत रेड्डी ने 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की है, इसलिए केटीआर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ఈయన తప్పు మాట్లాడిండయా, ఉద్యమంలో మీరు మాట్లాడింది మీరు చెప్పిందే ఆయన మీకు గుర్తు చేసిందని చెప్పంటున్నాను. ఉద్యమంలో కేసీఆర్ గారు చెప్పింది ఏంటి? కాళోజీ నారాయణరావు గారి వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తూ ప్రాంతీయేతరు ద్రోహం చేస్తే పొలిమేరల వరకు తరిమేస్తామని, అదే ప్రాంతం వాడు ద్రోహం చేస్తే ప్రాణంతోనే పాత్ర వేస్తామని చెప్పని ఏదైతే కాళోజీ నారాయణరావు గారు ఉటంకించిండ్రో కేసీఆర్ గారు పదే పదే చెప్పడం జరిగిందా? बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल और भारत जागृति तंजीम की सदर के कविता ने रियासती असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार से मुलाकात करते हुए असेंबली अहाते में ज्योतिराव फुले का मुजस्समा नस्ब करने की दरख्वास्त करते हुए नुमाइंदगी की। उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 11 अप्रैल से पहले स्पीकर कोई अच्छा फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जागृति की वजह से अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब किया गया था। हुकूमत इस मामले में जब तक कोई फैसला नहीं लेती, भारत जागृति के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि स्पीकर दुरुस्त फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बलदियात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का भी ऐलान किया है, इस पर अमल करना है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने गोलकुंडा, अहमद कॉलोनी, एमडी लाइन्स, टोली चौकी, मीनार कॉलोनी, अवैसी कॉलोनी, नदीम कॉलोनी और टोली चौकी गोल्डन पैलेस की मेन रोड के इलाके जात का अहाता किया, जहां उन्होंने NP3 पाइपलाइंस, सेवरेज और पीने के पानी की पाइपलाइंस और VDCC रोड की तामीराती कामों का भी मुआयना किया। मज़कूरा तरक्याती काम हल्का असम्बली कारवान में सेवरेज सिस्टम के तोसी कामों का एक हिस्सा हैं, जिसके लिए सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके 297 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं। दौरे में मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा इब्तदाई सदर मोतमदीन और सरगर्म मजलिस के कारकुन मौजूद थे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 41 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिम्बाब्वे से आने वाली खातून की जब तलाशी ली तो उस खातून के पास से ड्रग्स जब्त की गई। इस खातून का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से बताया गया है, जिसके पास करीब 6 किलो हेरोइन जब्त की गई है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तलबा से कहा कि वो निसाबी तालीम के साथ ज़ायद निसाब सरगर्मियों पर भी तवज्जो दें और दीनी तालीम से खुद को आरास्ता करें। वह हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल के सालाना जलसे के मौके पर तलबा में मेडल्स और अवार्ड्स तकसीम कर रहे थे। सदर मजलिस ने बच्चों को ज़हनी नशोनुमा को फ़रोग़ देने और उनकी मजमूई शख्सियत साजी को बनाने औलिया तलबा और असातिज़ा साहिबान को मशवरा दिया। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल की इंतज़ामिया ने मुगलपुरा, खिलवत, चादरघाट, संतोष नगर ब्रांचेस के अलहदा जलसे सालाना मुनक्किद कर रहे हैं और नए तालीमी साल से चंदूलाल बरादरी ब्रांच का आगाज़ करने का ऐलान किया। उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक्किदा इस तकरीब में तलबा, औलिया तलबा, असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस स्कूल की कारकर्दगी की सताइश की। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर।
क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी। दुबई सहरा से गुलिस्तान बन गया, वसाइल से भरपूर हैदराबाद को आलमी शहर बनाने की मसाई, रेवंत रेड्डी का दौरा दुबई। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमत के मुशीर मुकर्रर, मजीद 3 मुशीरान का तकर्रुर, हुक्मनामा जारी। छह गारंटियों पर अमलावरी के लिए हुकूमत के पास 57 दिन बाकी, 30 जनवरी तक डाटा एंट्री का अमल मुकम्मल होगा। 48 घंटों में 2 गारंटियों पर अमल के बाद पेशरफ्त सुस्त। बरकी बिल सोनिया गांधी को रवाना करने KTR की हिदायत, 17 मार्च से पहले 6 गारंटियों पर अमल करें। झूठ बोलकर कांग्रेस इख्तिदार में आई है, BRS कायदीन का रद्दे अमल। और जनूबी अफ्रीका से आने वाली खातून मुसाफिर के पास से भारी मकदार में हेरोइन जब्त, शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का ही इख्तिताम होता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।